God has chosen people like vessels whose souls is like a magnifying glass. As much as they are concentrated on the Lord, their soul will be able to reflect the anointing, the power of God like a magnifying glass. Put John 13:20. यूहन्ना 13 उसका 20. Most assuredly, Jesus is saying, most assuredly I say to you, he who receives whomever I send receives me. मैं तुमसे सच कहता हूं कि जो मेरे भेजे हुए को ग्रहण करता है वह मुझे ग्रहण करता है. He who receives me receives him who sent me. और जो मुझे ग्रहण करता है वो मेरे भेजने वाले को ग्रहण करता है. Amen. आमेन. In Acts 19, प्रेरितों के काम 19. let's see what happens. देखते हैं क्या हुआ. God worked unusual miracles by the hands of Paul. परमेश्वर ने अजीब तरह के चमत्कार पॉल के हाथ से किए. Who was doing miracles? कौन कर रहा था चमत्कार? Come on, talk to me. Who was doing it? But how was he doing it? No, Paul was not doing it. God was doing it. परमेश्वर कर रहा था, पौलुस नहीं कर रहा था. But how was he doing it? पर परमेश्वर कैसे कर रहा Through था? the hands of Paul. पौलुस के हाथों के द्वारा. Through the hands of Paul. पौलुस के हाथों से कर रहा था वो. The people who rejected Paul rejected the ministry that God wanted to do to them. जिन लोगों ने पौलुस को ठुकरा दिया, उन लोगों ने उन सामर्थ्य के कामों को ठुकरा दिया जो परमेश्वर उसके हाथ से कर रहा था. Amen. 2 Chronicles 20:20. I'll read the latter part. दूसरा इतिहास 20 उसका 20. It says, believe in the Lord your God and you shall be established. Believe his prophets and you shall prosper. इसके अगले आधे भाग में लिखा है, अपने परमेश्वर यहोवा पर विश्वास रखो तो तुम स्थिर रहोगे, उसके नबी की प्रतीति करो तब तुम कृतार्थ होगे, तुम समृद्ध होगे. Amen. Jesus said, do you believe in God? Believe also in me. यीशु ने कहा कि तुम परमेश्वर पर विश्वास करते हो, मुझ पे भी विश्वास करो. There are many people I meet, they say, yeah, I believe in Jesus, I just don't believe in the pastor. बहुत से लोग मिलते हैं ऐसे जो कहते हैं हाँ मैं यीशु को मानता हूँ पर अपने पास्टर पे भरोसा नहीं है मुझे. I said, why are you going to that church? तो मैं कहता हूँ क्यों जा रहे हो उस Because चर्च you में? will get nothing. क्योंकि आपको कुछ नहीं मिलेगा फिर वहाँ जाके. Everyone will be blessed except you. हर कोई आशीषित होगा आपको छोड़ के वहाँ पे. Amen. It's very important to recognize the vessel that God has sent. इसीलिए बहुत महत्वपूर्ण है उस बर्तन को पहचानना जिसको परमेश्वर ने भेजा आपके लिए. You know, every Sunday when God gives names, it's not that we are just like sharing names. हर संडे जब परमेश्वर मुझे नाम देते तो ऐसे नहीं कि मैं व्यर्थ में नाम कह रहा हूँ. Words spoken under the anointing can bring a transformation in someone's life. अभिषेक के अधीन बोले गए शब्द किसी की जिंदगी को बदल कर रख देते हैं. Amen. That centurion came to Jesus and said, I am a man under authority. He understood authority. वो सूबेदार यीशु के पास आकर कहा कि मैं अधिकार के अधीन एक मनुष्य हूँ. He said, I understand that you are also under authority. If you will speak, I'm going to get my miracle. और उसने कहा मैं समझता हूँ कि आप भी अधिकार के अधीन एक मनुष्य हैं, अगर आप कहेंगे तो मुझे मेरा चमत्कार मिल जाएगा. Amen. आमीन. So even as I'm going to pray in the end, तो जब अंत में मैं प्रार्थना भी करूंगा, I want you to believe the word that is released from this place. मैं चाहता हूं जो यहाँ से वचन भेजा जा रहा है उसको आप विश्वास करो. Amen. We are going to pray for the sick. I don't want to go for a long teaching session, हम बीमारों के लिए प्रार्थना करेंगे. मैं but I want to tell you पर मैं बताऊं that God is moving powerfully. कि परमेश्वर शक्तिशाली रूप से काम कर रहा है. Let me tell you an amazing testimony. मैं आपको एक अद्भुत गवाही बताना Are you चाहता ready? हूं. तैयार हो? Where is Shweta? Shweta, come. Praise the Lord, family. Praise the Lord, Pastor. She's a daughter of this house. वो इस घर की बेटी हैं. And I'm going to tell you what happened. मैं आपको बताना चाहता हूँ How क्या many people were here this Friday all night? Show me your hand. कितने लोग इस बार की फ्राइडे ऑनलाइन में थे यहाँ पे. Okay. Show me your hand as if you are अपने here. हाथ ऐसे दिखाएं. Okay. There is a word that God gave me. एक वचन परमेश्वर ने मुझे दिया था. Team, can you just put it there? I want to show you that first.
Lord Jesus Christ, right now, you're not married, there is a girl here, यहाँ एक लड़की है, आपकी शादी नहीं हुई, and you have no ovaries. आपकी ओवरीज नहीं है शरीर में, And the Lord is creating new ovaries in your body. और परमेश्वर नए ओवरीज बना रहा है आपके शरीर में. Okay. ये वचन था जो आया था. Now, you don't need to be a doctor to know you cannot grow ovaries. अब आपको डॉक्टर होने की आवश्यकता नहीं है जानने के लिए कि कोई ओवरी बना नहीं सकता, ग्रो नहीं कर सकता. Shweta, why don't you share what happened? प्रेज द लॉर्ड फैमिली. जय मसीह के परिवार. इस चर्च में मुझे आते हुए 1 साल हो गया है It's been a year I've been coming to this church. और मेरी सर्जरी हुई थी फरवरी 6, 2021 में. I had a surgery in Feb 6. मुझे डर्मोइड सिस्ट का हिस्ट्री था, जिसमें वो सिस्ट इतनी बड़ी हो गई थी कि डॉक्टर ने मुझे एट द टाइम ऑफ ऑपरेशन मेरे पेरेंट्स को बोला कि आपकी लड़की का राइट ओवरी निकालना पड़ेगा, क्योंकि वो जो सिस्ट है उसने पूरी ओवरी को कवर कर दिया है. There was a history of cyst in my ovaries and the doctor said I have to remove the ovary from your daughter's body because the cyst has covered the entire ovary. ये ऑपरेशन हुआ, उसके बाद मेरे स्टिचेस लगे थे जो, एंड बाय प्रोफेशन मैं कैबिन क्रू हूँ, और फ्लाइंग में आपकी बॉडी बहुत ज़्यादा हिट करती है क्योंकि आप प्रेशर में होते हो. तो जब ये सर्जरी हुई थी उसके तकरीबन 15-20 दिन के अंदर मुझे फ़्लाई करना था. फिर जब मैंने फ़्लाई करना शुरू किया उसके बाद वो कंडीशन और ख़राब होती गई. पिछले साल जब मैंने चर्च आना शुरू किया, मार्च 2023 में मैंने चर्च आना शुरू किया, और जब पहले दिन मैं चर्च आई उस दिन यही सभा हीलिंग एंड डिलीवरेंस सभा हो रही थी, जिसमें मैंने पास्टर अंकित को पहली बार सुना था, और उस वचन ने मुझे इस तरह खींचा और वो वचन मेरी ज़िंदगी का खंबा बन गया. I'm a cabin crew by profession, and when I had to fly after the operation, it used to pain a lot. The first time I came here was during a healing and deliverance service, and I caught the word, and it became a pillar in my life. जिस तरह पास्टर जी सिखाते हैं कि वचन को हम अपने जीवन में किस तरह उसका अधिकार ले सकते हैं और उसकी घोषणाओं के द्वारा हम चंगाई प्राप्त कर सकते हैं, मैंने उस चीज़ को अपनी ज़िंदगी में बिठा लिया. I made it a part of my life how we have to declare the word as the apostle teaches here. Yes. जून 6, 2023 मैंने दोबारा अल्ट्रासाउंड करवाया था 6 June 2023 I had an ultrasound क्योंकि मुझे दोबारा वही तकलीफ़ होने लगी थी, जिसकी वजह से मैं कोई भी नॉर्मल एक्टिविटी नहीं कर पाती थी. मेरे पीरियड्स इतने बुरे होते थे कि मैं अगर एक कदम भी रखूं तो मैं नहीं रख पाती थी. because I was again in trouble and I would had such pain, such terrible periods that if I could try to keep a step, I would not be able to do it. तो जब मैं अल्ट्रासाउंड के लिए गई